Everyone turn on your camera. So in the last class, what we discussed about the business plan. What is the meaning of that? What is the element? Why business plan is required? In today's class, we are going to understand about what is the meaning of project planning. What is the meaning of project and why we're required to make the project in the business, why we have to, and how the project is helpful for for making our business successful. Okay. So before that, I just want to tell you, turn on your camera, everyone. Turn on your camera. Every student. Okay, so who is going to tell me that what is the meaning of business plan? I just want to know about the answers. आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि 2 बार मैंने रिवीजन कराया है. So who is going to tell me about that? What is the meaning of business plan? Raise your hand. What is the meaning of business plan? What is the meaning of that? Raise your hand. What is the meaning of business plan? I'm asking again and again. Who is going to tell me? Raise your hand. Otherwise, I am going to ask the student randomly. किसी से भी पूछूंगी मैं फिर. Vishwajit, roll number 25, 445. Tell me, what is the meaning of business plan? Suraj, roll number 75, 444. Tell me, what is the meaning of business plan? क्या होता है बिजनेस प्लान? रजनीश, सन्नी कुमार, अरमान. No one knows what is the meaning of business plan? क्या है बिजनेस प्लान? Okay, yes, Prem Kunj, tell me. Ma'am, business plan refers to planning about business. It means how to start business and the internal and external environment about the business. Before doing a start business, planning is necessary about related to product, environment, and this competitive market analysis of it. Okay, good, Prem Kunj, you tried. Okay, so business plan का मतलब क्या होता है? Basically, it is a written content and it is telling us about the structure of business, model of business. It is a blueprint that how we are going to start the business. So these things are basically in the business plan. So what are the various content? I guess everyone knows about it, but still I don't want to ask because I know I didn't get the answer. So let's start with the project plan. What is the meaning of project planning? What is that? Okay, so before understanding the project, let me tell you that where the project is basically arrived. ये project term आया कहाँ से? देखिए, जो organization है, that is continuously on lookout on the good business idea. All the time they are searching for the good business idea, which they require to growth and the existing lines of the business or in the diversified areas. If they are running the business, they want to diversify it. Okay. So if we are talking about the project, what is the meaning of that? Project is distinct, it is a distinct mission. एक तरीके का goal होता है, एक mission होता है that is designed to achieve and clear the termination point. Like project is for the short time, कुछ short time के लिए हम कुछ model ready करते हैं, ठीक है? And it is basically to get the mission और कोई goal को accomplish करने के लिए हम प्रोजेक्ट को रेडी करते हैं, ठीक है? ये हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है एंड इसका मेन एम होता है कि हम अपने मिशन को अचीव करें, ठीक है? जैसे कि कोई आप देख लीजिए आत्मनिर्भर का कोई कैंपेन है, अगर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, तो उसको अचीव करना है कि 2 साल में कम से कम 20,000 लोग जो हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में हम एक प्रोजेक्ट रेडी करेंगे, एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट रेडी करेंगे और विद इन सच पीरियड वी आर गोइंग टू अचीव और अकॉम्प्लिश दैट टारगेट, ठीक है? सो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इट इज इंक्लूड सो मेनी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज एंड इट इज यूजिंग फॉर रिसोर्स for utilization of resource to gain the benefit. So project is basically, it is the short term goal which we need to achieve, and for achieving that goal we are designing the thing. हम लोग पूरा business को design करेंगे, अपना plan design करेंगे, and after that we are going to utilize the resources to gain the benefits. जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लास में प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, तो प्रोजेक्ट वर्क आपको क्या होता है कि 2 दिन के अंदर सबमिट कीजिए प्रोजेक्ट वर्क, है ना? ये चीज बोलते हैं ना,
टीचर्स के 5 दिन में प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कीजिए. सो आपका जो प्रोजेक्ट होगा दैट कैन बी ऑन द वेरियस टॉपिक एंड द हियर द सेम थिंग इज दैट कि इन द बिजनेस यू कैन टेक वन एरिया. फॉर एग्जांपल यू कैन मेक द प्रोजेक्ट ऑन द मार्केटिंग, कि आपको मार्केटिंग पे एक प्रोजेक्ट बनाना है कि भाई 10 दिन के अंदर ही हमें प्रमोशन वाइडली एग्रेसिवली प्रमोशन करना है और 10 दिन के अंदर हमारा जो सेल्स होना चाहिए वो कम से कम 10% इंक्रीज होना चाहिए. तो वी आर जस्ट मेकिंग अ दिस काइंड ऑफ प्लान एंड फॉर बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग इट वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट. हम एक प्रोजेक्ट रेडी करेंगे कि क्या चीज कैसे कैसे हमें अचीव करना है, किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे. सो प्रोजेक्ट जो होता है एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जो डेडिकेटेड होता है कुछ अटेन करने के लिए गोल को. शॉर्ट टर्म गोल को अटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म गोल को अटेन करने के लिए प्रोजेक्ट रेडी करते हैं. एक बार आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, बन गया विथ द सेम बजट एंड व्हाटएवर द गोल इज यू ऑलरेडी अचीव इट, इट मींस योर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल. सो प्रोजेक्ट बनाने का मेन रीजन क्या है, वी आर मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर द टेम्पररी बेसिस एंड व्हाई वी आर मेकिंग दैट, बिकॉज वी हैव टू अकॉम्प्लिश सम सर्टेन गोल. कुछ गोल अचीव करना है, कुछ हमने प्लान किया हुआ है इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं. अब जैसे मेट्रो जो है दैट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट, एक तरीके का वो प्रोजेक्ट है कि मेट्रो हमें 5 साल में बनाना है. सो दैट इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है, that which we need to do it fastly and to achieve the goal. ठीक है, तो क्या होता है प्रोजेक्ट, इतना समझ आया? what is the meaning of project? clear हुआ? yes okay, so let me tell you about the origin of the project, where this word is basically derived. ठीक है, so the word project comes from the Latin words projectum. projectum से इस word को लिया गया है, Latin word है ये, and from the projecere, टू थ्रो समथिंग फॉरवर्ड. इसका मीनिंग क्या है, किसी चीज को आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड. ठीक है, विच इन टर्न्स फ्रॉम द प्रो. तो ये बेसिकली आपको बताता है प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ समथिंग दैट comes before anything else is done. मतलब कुछ पहले करना जो पहले हो, मतलब जो जल्दी हो जाए, before anything else is done, मतलब जल्दी कर लीजिए इससे पहले कुछ और हो जाए बेसिकली. ठीक है, so something that comes, जो पहले हो, something जो that comes before anything else is done. ठीक है, so here this meaning of project is that development. हम प्रोजेक्ट का मतलब इसमें ना पर्टिकुलर एरियाज में हम करेंगे डेवलपमेंट. ऐसा नहीं कि बिजनेस प्लान तो पूरे के पूरे बिजनेस एरिया को कवर करते हैं इसमें ना, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट जो होता है that can be in the for separate section we are making the separate project. For example, if there are so many areas, just take it as example, like in a business there is a फाइनेंस है आपका, मार्केटिंग है आपका, और मान लीजिए यहाँ पर रिसर्च है. सो वी आर मेकिंग, वी कैन मेक द प्रोजेक्ट फॉर द रिसर्च ओनली, वी कैन मेक द प्रोजेक्ट फॉर मार्केटिंग ओनली, वी कैन मेक द प्रोजेक्ट फॉर द फाइनेंस ओनली. सो हियर द प्रोजेक्ट कैन बी बेसिकली helpful for the particular area. एक एक area पे distinctly we have to work, and why we are working for the project, why we are making that project, to achieve the certain goal. कुछ goal को achieve करना हमारा main reason और main काम है आपके project में. okay, एंड प्रोजेक्ट में हमेशा याद रखिएगा देयर इज ऑलवेज अ डेडलाइन. डेडलाइन का मतलब ये है कि एक समय के बाद वो प्रोजेक्ट जो है आपको कंप्लीट करना ही करना है. ऐसा नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं करना है. द प्रोजेक्ट हैव ऑलवेज अ डेडलाइन दैट यू हैव टू कंप्लीट इट, और विद इन 1 month, 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, according to the work. Like in the construction area, if we'll talk, construction area हमेशा long time का आपका होता है, long term रहेगा ये journey. तो long term journey की वजह से it is going to take the long time. ठीक है, construction जैसे metro construction, it will take long time. So in that case, we are basically do this work in this project for the long time. But always remember that project is for the temporary basis. Once it will be completed, obviously. ठीक है, एक बार ये जरूर कंप्लीट होगा. प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ टास्क, एक काम है जो करना है. जैसे एग्जांपल में आई कैन गिव यू द प्रेजेंटेशन वर्क फॉर 5 days. You all have to make that presentation and you have to represent it. So that 5 days is for the project completion is required. ठीक है,
हमेशा याद रखिएगा, हर एक कंपनी जो है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को रन करती है विद इन द बिजनेस में विद इन वो क्या करती है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को रन करती है शॉर्ट टर्म के लिए और कई बार लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखिएगा। लेकिन ये टेम्पररी होता है, एक बार गोल अकॉम्प्लिश हुआ देन वी आर गोइंग टू क्लोज द प्रोजेक्ट, देन विल स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट, वी कैन डू दैट। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? क्लियर हुआ क्या होता है प्रोजेक्ट? एवरीवन ओके। So now we have to see that how we are going to manage the project. मतलब we are going to identify the steps in managing the project and avoid the pitfalls. मतलब जो भी consequences उसको avoid करना है, worst consequences को, और किस तरीके से हम identify कर सकते हैं कि steps किसके लिए, manage करने के लिए project को। ठीक है, तो first thing is design. Like first, whenever we are starting or we are launching a project, कभी भी हम कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या फिर उसको स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहले हमें डिजाइनिंग की जरूरत है। हर एक प्रोजेक्ट जो है पहले ऑब्जेक्टिव्स को देखेगा। जैसे एग्जांपल में अगर कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जल्दी से जल्दी मेट्रो की सुविधा लोगों को मिले, सोशल वेलफेयर के लिए दैट इज रिक्वायर्ड एंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक इट इज रिक्वायर्ड। सो वी कैन से दैट फर्स्ट whenever we are designing the project, there should be always the reason behind it. We have to understand the objective behind this project. Like if there is a marketing के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि सेल्स बढ़े, कंज्यूमर नॉलेज हमारा इंक्रीज हो। ठीक है, सो ऑलवेज देयर इज अ ऑब्जेक्टिव। सो इन द केस ऑफ द डिजाइनिंग, एवरी प्रोजेक्ट मस्ट स्टार्टेड with identifying the objective. What is the reason behind that particular starting the project? Why we are starting the project? Consideration must always be given to the constraints that might jeopardize का मतलब था jeopardy word होगा, आप लोगों ने सुना होगा। jeopardy का मतलब होता है खतरा, danger. So jeopardize the project, including those related to market, technology, human resource, budget, and timeline. So I already told you that in the project always there is a completion time. हमेशा इस टास्क का एक कंप्लीट करने का टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर भी जो भी कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का मतलब जो भी रुकावटें हैं जो एक प्रोजेक्ट को बनाने में आ सकते हैं, उनको भी हम कंसिडर करेंगे। कंसिडर कैसे करेंगे? हम देखेंगे मार्केट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ सकती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, मेट्रो का जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, तो व्हाट हैपेंड कि वहां पर हमने जापान से बहुत सारी मशीनरीज को मंगवाया था इंडिया में, बिकॉज विद द यूटिलाइजेशन ऑफ दूज मशीनरीज वी आर एबल टू मेक दैट पर्टिकुलर मेट्रो के डब्बे जो बोलते हैं ना, वो बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड मशीन्स। सो व्हाट टेक्नोलॉजी अवेलेबल विथ यू इफ यू आर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। सो इफ देयर इज एनी कंस्ट्रेंट, कोई भी कमी अगर है आपके प्रोजेक्ट में, क्या आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, किस चीज से रिलेटेड आ सकता है? तो या तो मार्केट से रिलेटेड आ सकता है प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ सकता है, ह्यूमन रिसोर्स स्किल की प्रॉब्लम, ठीक है, एंड बजट। बजट मतलब कितना पैसा हम प्रोजेक्ट में लगाएंगे, बजट एंड टाइमलाइन। आप लोगों को पता होगा कि कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे अभी फिलहाल पटना में एक पुल कंस्ट्रक्शन हुआ था, आपको पता है ये प्रोजेक्ट था कि यहां से यहां तक का हमें पुल बनाना है, दिस इज अ प्रोजेक्ट, और इसमें एक पैसा एलोकेट किया गया था करोड़ में, ठीक है ना। सो हमेशा प्रोजेक्ट में हम एलोकेशन करते हैं फंड का कि ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें 10 करोड़ की जरूरत है। तो कई बार हमारे पास उतना बजट नहीं होता है कि हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन बेसिकली यूटिलाइज द मनी। तो हमें बजट से रिलेटेड कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। तो दीज कैन बी द consequences of problems which can be related with the project. So project is always for the short time, it should not short time, it is temporary. Always remember it is temporary. ठीक है, once the project will be completed, then we are going to off that project. हम उस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। Okay. Next one is planning. If you are basically want to do the project, if you want to start a project, अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं,
ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डिफाइन द बेनिफिट्स टू द बिजनेस, मतलब उस प्रोजेक्ट का बिजनेस में क्या बेनिफिट है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट टू द बिजनेस, बिजनेस में उसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट होगा। जैसे एक मार्केटिंग की, एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, अगर वो मार्केट सर्वे करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, मान लीजिए माई सर्वे नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हमेशा याद रखिएगा प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। तो मान लीजिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया माई सर्वे के नाम से, और वो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी जो है वो इस प्रोजेक्ट में मान लीजिए 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है। अब ये सर्वे में क्या आपको करना है, यू हैव टू गो टू द मीट सो मेनी पीपल in the marketplace and you have to ask the question related with the digital marketing। आप digital marketing से related उनसे question करेंगे, आप उनके problems को समझेंगे, ठीक है। So whenever you are doing the planning, जब भी आप planning कर रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने का या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, so in that situation पहली चीज आप ये देखिए कि उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, उस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है आपके बिजनेस के लिए, क्या वो आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्या आपके वो सेल्स में हेल्प करेगा, क्या आपके वो कंज्यूमर बेस को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। सो व्हाट इज द बेनिफिट विच इज रिलेटेड विथ द प्रोजेक्ट, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो इन प्लानिंग फेज जब आप प्रोजेक्ट बनाने का प्लान में होंगे, तभी आपको इस बेनिफिट के बारे में अपने उस प्रोजेक्ट में पहले ही सोच लेना, मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टेप्स लिखिए, जैसे प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, उन्होंने अपना एक सर्वे प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कोई भी XYZ मान लीजिए डिजिटल कंपनी है, एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट द डिजिटल मार्केटिंग की ये कंपनी है XYZ, और ये अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है माई सर्वे नाम से। माई सर्वे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। दे आर बेसिकली स्टार्टिंग माई सर्वे campaign, or we can say it is a project, and here what they started doing, they are basically doing the survey work and in both mode, online भी कर रही है और offline भी कर रही है, ठीक है, और बहुत सारे रिटेल स्टोर में भी कर रही है, मार्केट प्लेसेस में भी कर रही है। So basically they are basically doing one, making one project, so they understand that it is benefit for making the customer base, and now to implement this project, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एक प्लानिंग का पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है सर्वे करने के लिए, सेकंड में हम बिग रिटेलर्स के पास जाएंगे जहां पर हमारे प्रोडक्ट, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी बिग रिटेलर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग जो यूज करते हैं, ऑर्गेनाइज अगर कोई स्टोर है तो हम बिग रिटेल के पास जाएंगे। थर्ड, मार्केट एरिया में पता करेंगे कि भाई कौन से कंज्यूमर्स को कितनी दिक्कत है, और वो अपना जो भी अपना टर्म्स होगा वो बताएंगे। नेक्स्ट जो है, मतलब यहाँ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने स्टेप्स को मेंशन कर लेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले क्या करेंगे, फिर सेकंड में क्या करेंगे, फिर थर्ड में क्या करेंगे, फिर फोर्थ में क्या करेंगे, लाइक दिस। सो यू हैव टू मेक वन क्रोनोलॉजी। First we have to design the project, like my survey is one of the design of the project, and how we are going to implement this project, how we are going to work for this project, we are going to make the chronological order, मतलब पहले ये करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में ये, थर्ड स्टेप में ये, फोर्थ स्टेप में ये, लाइक दिस, ठीक है। एंड उसके अलावा ये भी चीज देखेंगे कि हर एक स्टेप्स में कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। यानी फर्स्ट अगर हम माई सर्वे मार्केटिंग से रिलेटेड कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों की जरूरत होगी, कुछ मार्केटिंग, कुछ सेलिंग, तो इन डिपार्टमेंट के लोगों को भी हम उस प्रोजेक्ट में जोड़ देंगे। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ठीक है। एंड व्हाट विल डू व्हाट, मतलब यही चीज है कि हु विल डू व्हाट, मतलब कौन क्या करेगा, ये भी हम डिसाइड कर लेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लानिंग कर लेंगे रेडी। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट को डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, डिजाइनिंग कंप्लीट, भाई ये नाम रख दिया, ये प्रोजेक्ट है, ये सब डिजाइनिंग कंप्लीट। सेकंड में प्लानिंग करेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंडर में हम किस तरीके से इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें। तो सबसे पहला आ जाएगा कि चलो ये माई जो सर्वे है इसका पहला ये है कि हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रॉपर देखना पड़ेगा। तो हम एक टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लोगों को इसमें हायर कर लेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म आया। सेकंड में हम देखेंगे कि अब इसको कहां पर सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे, तो बिग रिटेल स्टोर जहां डिजिटल मार्केटिंग का यूटिलाइजेशन होता है वहां पर। उसके बाद कुछ कंपनीज को अप्रोच करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट में भी हम कंज्यूमर पे भी सर्वे करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। सो वी आर गोइंग टू डू द मेक द फुल क्रोनोलॉजी और फुल ऑर्डर दैट हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट इन द मार्केट, ठीक है। Now the plan has to be executed. Once we are done with the designing, once we have done the planning thing, now what we are going to do, we are going to do execution. Execution का मतलब उसको लॉन्च कर देना, उसको स्टार्ट कर देना, मतलब प्रैक्टिकली अब जितना भी चीज था वो कॉपी किताब और डेस्कटॉप में आपने सब कुछ कर लिया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। अब बारी है प्रैक्टिकल करने की, यानी कि अब हम इसको प्रॉपरली मार्केट में लॉन्च कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस चीज को एक प्रॉपर टाइमलाइन दे देंगे कि ये जितनी भी चीजें हमने प्लानिंग की है उसके लिए हमें 3 मंथ की जरूरत है। सो वी आर गोइंग टू राइट, वी आर इवन गोइंग टू गिव द टाइमलाइन दैट वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन 3 मंथ, ठीक है। अब यहाँ एग्जीक्यूशन कर दिया हमने, एग्जीक्यूशन होने के बाद ये जो है वो मार्केट में गया, अपना स्टार्ट हो गया वर्किंग, जो भी हमने प्लानिंग किया था वी स्टार्टेड डूइंग एंड वी आर इन द प्रोग्रेस। हमने एक एक करके अपने सारे प्लान्स को जो भी था प्रोजेक्ट में वो सब हम लोगों ने क्या कर लिया, अकॉम्प्लिश कर लिया, डिले नहीं किया। ऑलवेज रिमेंबर इन प्रोजेक्ट यू कैन नॉट डिले और यू कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग, मतलब टालने वाली चीज आपके प्रोजेक्ट में कभी काम नहीं आएगी, बिकॉज प्रोजेक्ट जो होता है वो जल्दी से अकॉम्प्लिश करने का होता है और टाइमलाइन होता है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टॉक आवर प्रोग्रेस एंड वी हैव टू अवॉइड द डिलेज आफ्टर द कंप्लीशन। वंस द project is completed, then we are basically going to understand that the project is successful or not, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। अगर हम एक डेटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं तो हमें इनफ डेटा मिला या नहीं मिला, हमें क्या डेटा मिला, कितना रिलेवेंट डेटा मिला, ये सारी चीजें फिर हम सोचेंगे। आपके कंप्लीट का मतलब कि आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, काम हो गया, कंप्लीट, ठीक है। So momentum is often lost during the last 10% of the project. People feel like everything is finished. कई बार ऐसा होता है कि 10% काम बाकी है फिर भी लगता है सब कुछ फिनिश हो गया। To all of you, once the completion is done, once the project is over, the project is completed, what time is required to completing? Yes, sometime we are giving the grace time period कि 7 दिन और हम लोग extend कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, but sometime, not कि 5 महीने की चीज को हम 5 साल में कर रहे हैं, no. Postmortem, the next stage is postmortem. Now in this stage what is going to be happen? Get the project team together. जो लोग भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, हमेशा याद रखिएगा आप हर एक एम्प्लॉइज को प्रोजेक्ट में शामिल नहीं कर सकते हैं। जो चीजों से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी डिजिटल मार्केटिंग की है और दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर द सर्वे रिलेटेड थिंग, तो इट मींस इट इज रिलेटेड विद द रिसर्च टीम, मतलब रिसर्च पर्सन से रिलेटेड ये आपका काम है। तो आप रिसर्च के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो पोस्टमार्टम स्टेज में क्या होगा कि अपने पूरे प्रोजेक्ट टीम को, जो भी आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपके साथ थे, उन सबको बुलाना है आपको। यू हैव टू गेट द प्रोजेक्ट टीम टुगेदर टू लुक एट व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट डिड नॉट। अब हर एक पर्सन जो भी होगा, जैसे हमने 10 स्टेप रखा एक प्रोजेक्ट में, मान लीजिए कि हमने 10 स्टेप्स रखा, ठीक है। इफ देयर इज 10 स्टेप्स, ठीक है, प्लानिंग में हमने 10 स्टेप रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So in each and every बोल सकते हैं स्टेज देयर इज 1 person और 2 person, ठीक है। अब इनके पास जो डेटा है, सबका डेटा, जो जिन्होंने भी प्रोजेक्ट में आपके साथ थे और जिन्होंने भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, इन सब के डेटा को, ये 10 एम्प्लॉइज अगर यहाँ पर थे इस 10 स्टेज के लिए, तो 10 एम्प्लॉइज को आप बुलाएंगे और उसके बाद आप सब देखेंगे कि किसने कैसा काम किया है, ठीक है।
So here you are basically going to see that what went well, मतलब क्या बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ और कौन सा काम अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, कौन सा स्टेप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई. सो यू कैन अवॉइड द लेटर इन द फ्यूचर. मीन्स आपके अगर आगे ऐसा कुछ भी होगा तो आप नेक्स्ट गलती सेम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ना करें, इसीलिए आपको इसको एक बार प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने की जरूरत है. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द पोस्टमार्टम स्टेज. Here, after the completion, the project team members are going to be called by the manager or by the CEO of the company, and they are going to inspect. He or she is going to inspect that what is went well, बहुत अच्छा हुआ, और क्या बहुत ही खराब हुआ, ताकि आगे चल के ये फ्यूचर में आपकी गलतियां दोहराई ना जाए. यहाँ पर आप क्या क्या चीजों को देखेंगे, यहाँ पर here are some tips and overcoming the most common obstacle. मतलब कुछ टिप्स बताए गए हैं जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हैं. यहाँ पर आपको डिटेल फिजिबिलिटी स्टडीज को एस्टिमेट करना पड़ेगा ऑल कॉस्ट से, मतलब जितना आपने पैसा लगाया क्या आपका उतना काम हुआ या नहीं. ठीक है. उसके अलावा मैंने पहले ही बोला था कि बिग प्रोजेक्ट्स को स्टेप्स में डिवाइड करना जरूरी है, तो हमने एक स्टेप बनाया था, तो उनको डिवाइड कीजिए. और डिवाइड करने के बाद हमेशा याद रखिए, अगर आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चाहते हैं तो कभी भी ओवर बर्डन मत दीजिए आप किसी भी एम्प्लॉइज को, क्योंकि अगर आपने एक एम्प्लॉय को 4-5 स्टेज में और स्टेप्स में डाल दिया, so that person is not able to focus in one area. So in a project, always try to hire or always try to give the responsibility to those people who are expertise in that area only. ठीक है. एंड ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड द बिग प्रोजेक्ट इन द स्मॉल स्टेप्स, उसको स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट कीजिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक प्रोजेक्ट में 20 लोग को डाल तो दिया, लेकिन कौन से एरिया में कौन पोर्शन देखना है वो आपने प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डिवाइड किया. ठीक है. और उसके अलावा आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो भी रिस्क वगैरह जो भी हमने डिटरमाइन किया था, क्या वो रिस्क जो है क्या उसने आपके प्रोजेक्ट पे ऊपर इफेक्ट डाला. अगर डाला तो कितना % आपका उस चीज से लॉस हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मान लीजिए ऐसा हुआ भी होगा, बहुत सारी कंपनी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया बट ऑफलाइन का काम इसलिए बंद हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड पीरियड, तो समहाउ दिस पैंडेमिक इफेक्टेड द प्रोजेक्ट, राइट. सो इधर देयर इज जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी कंसिक्वेंसेस हैं, जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, जो भी आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल जो भी चीजें हैं, जो भी चेंजेस हुए, उसने क्या आपके प्रोजेक्ट पे इफेक्ट डाला. यू हैव टू चेक इट. इसीलिए हमेशा प्रोजेक्ट में पहले ही रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग बनानी जरूरी है. उसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा आपका स्टेप है जो जिस भी पर्सन को आपने वो दिया है, वो स्टेप जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है. जैसे आपने दे दिया कि मार्केट एरिया में जाके सर्वे कीजिए, और मार्केट एरिया का सीन ये है कि बहुत रश है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फील करना पड़ रहा है, वहां पर फेस करना पड़ रहा है जब आप सर्वे ले रहे हैं. तो वहां पर आप कोशिश कीजिए कि उस काम को कुछ ज्यादा लोगों में डिवाइड कीजिए. ठीक है. सो डिविजन ऑफ द प्रोजेक्ट इन डिविजन ऑफ द वर्क इन द प्रोजेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड. सेकेंड थिंग, ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड द प्रोजेक्ट, बिग प्रोजेक्ट into the steps. ठीक है. Always try to hire the expertise who is able to handle the project or the current scenario. ठीक है. Always try to minimize the risk whatever is related with the your project, and if there is a risk, how you can minimize it, so take step for that. ठीक है. और उसके अलावा always remember one thing, never try to pressurize the people. आपके साथ जो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उनको कभी भी प्रेशराइज मत कीजिए कि यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, अदरवाइज इट माइट बी पॉसिबल दैट इट इज गोइंग टू इफेक्ट द प्रोजेक्ट. बिल्कुल इफेक्ट करेगा, आपके प्रोजेक्ट में लॉस भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. सो जस्ट ट्राई टू गिव द प्रोजेक्ट लाइक द नॉर्मल टास्क, जो एक नॉर्मल काम एम्प्लॉइज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसी की तरह आप टास्क की तरह इस प्रोजेक्ट को भी हैंडल उनको करने के लिए दीजिए. ठीक है. अगर always keep your employees posted on the project progress and how the project is working, यानी प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है उसके बारे में हमेशा ही आपको डिस्कशन करने की जरूरत है. ऐसा नहीं है कि once the project is completed then after that you are going to inspect only, but you can basically keep your eye on the progress of the project, यानी प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है उस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं. ठीक है.
उसके अलावा डोंट ट्रस्ट इनटू द थिंग्स, तुरंत से आप रश मत कीजिए, तुरंत से मत भागिए। द मोर टाइम यू स्पेंड डेवलपिंग एंड प्लानिंग द प्रोजेक्ट द मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। इसीलिए प्रोजेक्ट के कंप्लीशन से पहले द प्लानिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू बेसिकली कंप्लीट द प्रॉपर प्रोजेक्ट। सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस पॉइंट इज क्लियर, सबको पॉइंट क्लियर? yes, समझ में आया? ओके, टर्न ऑन योर कैमरा। अब व्हाट इज हैपनिंग, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो डेवलपमेंट हम कर सकते हैं प्रोजेक्ट का, वो बहुत सारे एरियाज में कर सकते हैं। जैसे अगर हम रूरल डेवलपमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर हम रूरल डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो वहां पर वी कैन टेक 3-4 एरियाज। लाइक हमने फिशरीज ले ली, एग्रीकल्चर में फिशरीज आ गया आपका, फार्मिंग आ गया आपका, और आपका रिटेल आ गया। मान लीजिए 3 सेक्टर को हमने कवर कर लिया रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब एक और हो सकता है कि रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हम डैम्स के ऊपर भी ले सकते हैं, वाटर फैसिलिटी ले सकते हैं, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो देयर आर वेरियस एरियाज दैट वेयर वी कैन मेक द प्रोजेक्ट, वेयर वी कैन मेक द प्रोजेक्ट ऑन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की क्लासिफिकेशन की, कि प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो देयर आर सम क्वांटिफाइबल एंड नॉन क्वांटिफाइबल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिफाइबल? इट मींस कि आप क्वांटिटी के हिसाब से उसको बेसिकली प्रोजेक्ट के सक्सेस को देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कि लाइक 500% वी अचीव, वी हैव अ डेटा, we have a statistical information, we have numerical things। जब क्वांटिटी के हिसाब से बोलेंगे तो हमारे पास क्या है, आपके पास नंबर्स में आपके पास प्रोजेक्ट का कंप्लीशन रिपोर्ट है कि भाई 20% हमने यहां करना था और हमने इसको 15% अचीव किया, 5% हम अचीव नहीं कर पाए। सो या तो क्वांटिफिएबल होगा, क्वांटिफिएबल मतलब कि क्वांटिटी में हम उस प्रोजेक्ट को मेजर कर सकते हैं उसके सक्सेस को, या नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट होगा। नॉन क्वांटिफिएबल का मतलब क्वालिटेटिव, यानी जिस चीज को हम नंबर से काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्ट जो होंगे दैट कैन बी द क्वांटिटेटिव असेसमेंट होगा कि बेनिफिट हमें जो मिलेगा क्वांटिटी में मिलेगा, यानी अगर हमें नंबर्स में ऐसा दिख के मिलता है कि 44% आर टारगेट डेटा। जैसे आपको मैं बता देती हूँ कि 5 ईयर प्लान जब प्लानिंग कमीशन ने स्टैब्लिश किया था, तो इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था 5-5 साल का था, तो इसमें इन्होंने टारगेट रखा 4.6% और अचीव हुआ मान लीजिए 5.8%। तो ये क्वांटिफिएबल होगा आपका क्या, आपका प्रोजेक्ट। क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट में जहां पर हमारा जो सक्सेस रेट होगा दैट कैन बी मेजर इन द क्वांटिटी, लाइक परसेंटेज के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, ठीक है। सो दैट विल नोन एज द क्वांटिफिएबल। आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जब कोई प्रोजेक्ट नंबर के हिसाब से जब हम उसको मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ में आया कि जब किसी चीज को क्वांटिटी से हम मेजर कर सकते हैं, 6%, 8%, 10%, 20%, हमारे पास एक डेटा प्रेजेंट हो, डेटा मतलब नंबर में डेटा प्रेजेंट हो, ठीक है। वही अगर हम बात करें, जैसे प्रोजेक्ट रिलेटेड होता है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, पावर जनरेशन से, मिनरल डेवलपमेंट से, तो ये सारी चीजें इस कैटेगरी में आती है। यानी मिनरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो क्वांटिफिएबल में आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आएगा वो नंबर्स में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्ररी अगर देखें, नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें, तो यहां पर हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट पे बात नहीं करते, हम यहाँ पर क्वालिटेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, आपका डिफेंस रिलेटेड, ये सब नॉन क्वांटिफिएबल में आएगा। क्वांटिफिएबल जहां पर हमारे पास डेटा फाइनल अचीवमेंट का एक प्रॉपर नंबर्स के थ्रू हो, नॉन क्वांटिफिएबल जहां पर हम नंबर और डेटा का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, बल्कि जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, यहाँ पर नंबर और डेटा का यूटिलाइजेशन ना करके हम यहाँ पर नॉन क्वांटिफिएबल हमारे पास रिजल्ट आ सकता है। तो क्वांटिफिएबल का मतलब होता है जहां पर हम किसी चीज को क्वांटिटी में नापे, नंबर्स में मेजर करें, नंबर्स में रिजल्ट आए। और नॉन क्वांटिफिएबल दैट कैन बी नॉट मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर, दैट कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आई गेस तुम लोग को पता होगा, पता है ना?
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव which is not presented in the numbers, and the quantitative which is presented in the numbers and the data, right? So here the same thing is going here I am going to explain the same thing कि जो प्रोजेक्ट होगा अगर हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है, so that will comes under the non quantifiable, एंड जो नंबर से रिलेटेड है जैसे मिनरल हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होगा वो भी नंबर से रिलेटेड होगा, तो क्वांटिफिएबल में आएगा वो। आ गई बात समझ में? यहां तक समझ में आया सबको? प्रोजेक्ट क्या है? तो प्रोजेक्ट इट इज अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग इन द बिजनेस टू अचीव अ सर्टेन गोल, ठीक है, एंड इट कैन बी फॉर द पर्टिकुलर एरियाज। वी आर एबल टू मेक द डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट for the distinct working areas, and the reason behind it to give the benefit to the company or give the benefit to the business, right? That should be temporary hoga. Big project jo hoga, that can be in the steps wise. Skilled and expertise is required, and once the project is completed, we are going to identify that project is successful or not, whatever we target we achieve it or not, so we are going to compare it. Once the project is completed, we are going to off the project, wo project ko band kar denge, off kar denge, theek hai, then we will start with the new project, but the same project can be run, but it can be run for the temporary basis only. वो एक बार आपका काम खत्म हो जाएगा, जैसे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, यस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पुल बनाने का प्रोजेक्ट मिला 2 साल के लिए, 2 साल में प्रोजेक्ट बना, ये कंस्ट्रक्शन हुआ, प्रोजेक्ट खत्म। आई बात समझ में? यस मैम। क्लियर? ओके, सो व्हाट आर द सेक्टोरियल प्रोजेक्ट? अगर हम सेक्टर के हिसाब से देखें तो बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर और एलीड सेक्टर है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इरिगेशन और पावर सेक्टर में हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्टर में हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में वी कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट, सोशल सर्विस सेक्टर में वी कैन स्टार्ट। सोशल सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे एरियाज हैं, लाइक देयर आर सम, we can say the orphanage हो गया, child education से related हो गया, so even we can select those areas within the particular sector as well, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग अलग सेक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग अगर एक बिजनेस है तो अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शनल एरियाज के लिए भी वी आर एबल टू मेक द प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, आप लोग में से बहुत लोग के घर में जो आईटी में जॉब करते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस का 2 साल का प्रोजेक्ट आया है, उस पे काम कर रहा हूँ, सुना है ये लाइन? सुनते हो? यस मैम। कि 2 साल के लिए है, बट दे आर नेवर सेइंग दैट दिस प्रोजेक्ट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, बट यस दैट प्रोजेक्ट इज केम कि हाँ ये 2 साल के लिए काम आया है प्रोजेक्ट का, अब इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। उनके पास 500-600 प्रोजेक्ट होते हैं, जो आईटी वाली कंपनीज होती हैं, वो क्या करते हैं ना कि एक एक प्रोजेक्ट के हिसाब से लोगों को हायर करते हैं। जैसे उनके पास यूएस का प्रोजेक्ट आया तो यूएस के उनके पास अगर कोई एक्सपर्टीज आया, पर्सन नॉलेजेबल एक्सपीरियंस, तो उनको वो हायर कर लेंगे और उस प्रोजेक्ट में डाल देंगे। आ रही है बात समझ में? सो प्रोजेक्ट इज बेसिकली द शॉर्ट टर्म वर्क और दैट इज अ टेम्पररी बेसिस। अगर हम बात करें टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। So techno-economic projects, I am thinking that it is better we'll discuss it in the next class. So for today, I guess project, what is the steps of project, that is clear to all of you. What are the various steps of the project? The first one is designing. हम पहले डिजाइनिंग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर कंप्लीशन होगा और फाइनली पोस्टमार्टम, ठीक है। पहले प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, उसके बाद पूरा प्लानिंग करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ का पुल बन रहा था तो इसके लिए पहले डिजाइनिंग हुआ कि यहाँ से लेकर के, मान लीजिए इस वाले रोड से लेकर के इस वाले रोड तक कितने दिन तक ट्रैफिक हम रोकना पड़ेगा, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे, कितने लोगों की जरूरत है, एवरीथिंग विल कम्स अंडर द प्लानिंग, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इन द स्टेप्स। Once the planning is done, then we'll start executing, मतलब काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तक पेपर और लैपटॉप पे काम कर रहे थे, then we'll start पुल बनाना है, ठीक है, और वो रोड पर बनाना है। तो अब हम बिल्कुल रोड पे खड़े होकर उस प्रोजेक्ट के बारे में डिसाइड करेंगे कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। तो अब उससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत है, हमने वो वहां पर
पहुंचवाया और वहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया. मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, वो काम शुरू हो जाना. ठीक है. Once the execution is done, then finally it will be going to completed. अब वो complete हो गया. Once the project is completed, now we are going to see that the project is successful or not. ठीक है. So in all these things we are going to identify in the postmortem stage. So I guess this point is clear to all of you that how we are going to do the project planning. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. चलिए. Okay. So let's start with today's story, and today's story is about Zomato. So before starting this topic, I just want from you all that how many of you are using Swiggy and Zomato? Okay. So what is this company for? ये कंपनी किस चीज के लिए है? What is this company for? अब ये भी मत बोलना कि ये भी नहीं पता है. This company is for what? बताइए. कोई भी बच्चा बताओ. Zomato is for what? रुचि, सन्नी, सूरज बताओ. मैम फूड डिलीवर करता है. बिल्कुल फूड डिलीवर करता है. और तुम लोग जो हाथ उठा रहे थे क्या सोच रहे थे अभी तक यहाँ तक? मैंने ही तो बताया, हाथ भी तो मैंने कर. अच्छा, कौन बच्चा कह रहा है ऐसे ये बात? सनी मैम. Okay. So what is the what the work Zomato is doing? Zomato is basically food delivery app, right? It is a food delivery app, and what they are doing, they are basically sending or basically delivering the food from they are taking it from the restaurant and they are delivering it to the consumer. But for using Zomato, we have app of it. हमारे पास क्या होना चाहिए? इसका एक application होना चाहिए. And application में we are basically sign in, हम इसमें registration करते हैं. उसके बाद अपना address डालते हैं और हमें जहां भी जो भी रेस्टोरेंट जो Zomato के साथ linked up है या फिर कह सकते हैं कि which is basically tie up with Zomato, we will get the option of those things in the application, right? So हमें application में हमें क्या मिलेगा? वो सारे के सारे information जो भी रेस्टोरेंट जो tie up है आपके Zomato के साथ. So Zomato is basically, it is a platform which is basically helping the consumers to get food in their house only. We don't need to visit the restaurant to eating food, but we are able to get the outside food easily delivered in our home. ठीक है. So how's the idea was started and who is the founder of Zomato? So let me tell you, Dipinder Goyal and Pankaj Chadda, they both basically founded Zomato in 2008. So it is not a new company, but this company was in India from last 2008. Okay. So who basically invented this company? Who started this? Who's the founder of this company? Dipinder Goyal and Pankaj Chadda. Okay. So Zomato की अगर valuation की मैं बात करूं, I will start describing about Dipinder Goyal and Pankaj Chadda as well, that how they basically started this work. But before that, I just want to tell you that Zomato has hit a valuation of around $5.4 billion on February 22-21. मीन्स ये एक साल पहले का डेटा है और उस समय इनका कम से कम 5.4 बिलियन का इनका वैल्यूएशन था. ठीक है. So let's start with know about. I'm just going to give you the some information about the Zomato. Like this Zomato is the headquarter. It is in Gurugram. So many people are still confused. उनको लगता है Zomato बाहर की company है. No, it is an Indian company. Even it is started by the Indian entrepreneur. ठीक है. So headquarter इसका Gurugram है. Sector क्या है? It's food delivery. Founder Dipinder Goyal and Gaurav Gupta and Pankaj Chadda. So there are 3 people. फाउंड कब हुआ है? 2008 में हुआ है. वैल्यूएशन इसका क्या है? वैल्यूएशन है इसका लगभग 8 बिलियन इन जुलाई 2021. ठीक है. $8 बिलियन. और रेवेन्यू इसका क्या है? लगभग 2604.7 करोड़. वो भी 2020 का ये डेटा है. और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बता दूं कि Zomato इज नाउ रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी. इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि Zomato का IPO भी आया था अभी कुछ दिन पहले. याद होगा तुम लोगों को. तो ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ये Zomato ही है. Zomato मीडिया प्राइवेट लिमिटेड.
So this is some basic information about Zomato. Okay, so these are two person who started, who is the founder of Zomato. Let me tell you. So Dipinder Goyal, he is an IIT Delhi alumnus. Matlab, he basically completed his engineering from IIT. Let me tell you, Goyal was not at all good in his studies at the time when he was in the school. Matlab, school में पढ़ने में अच्छे नहीं थे. लेकिन eventually, even he got admission in the IIT. Maybe because of the luck, or maybe after that he started hard working. कई बार ऐसा होता है कि लोग hard work करना एकदम से शुरू कर देते हैं. So, but he he completed his graduation from IIT. After completing his graduation, Goyal was hired by Bain and Company. So, where he was hired in the Bain and Company में उनको job मिली, जहां पर वो एक सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट के पोजीशन पर थे. एंड बट ही डिडंट डू जॉब फॉर द लॉन्ग टाइम, ही डिड ओनली लेस देन 4 years, मतलब 4 साल से भी कम उन्होंने वहां पर जॉब किया, और उसके बाद इन्होंने जोमैटो में को फाउंड किया. ठीक है. सो इट इज अबाउट द दीपेंद्र गोयल. लेट मी टेल यू अबाउट द पंकज चड्डा. Pankaj Chadha, he also completed his BTech in mechanical engineering from IIT Delhi, and after that he also went to the Bain and Company. So it means that they both are the classmates as well as they are the office mates. ठीक है, ऑफिस के कलीग भी थे ये. एंड यहाँ पर दीपेंद्र ने भी ही ऑल्सो, मतलब यहाँ पर जो आपके पंकज थे उन्होंने भी 2-2.5 साल जॉब किया. जब इनको जोमैटो मिला, जोमैटो को जब फाउंड किया दीपेंद्र गोयल ने, तो ही स्टार्टेड वर्किंग इन जोमैटो. सो ही इज द को-फाउंडर एंड ही रिजाइन्ड जोमैटो इन May 2018. पंकज चड्डा ने रेजिग्नेशन दे दिया है 2018 में, where he served as the consignment keeper and support system during the upheavals. And now basically जो आपके पंकज हैं, पंकज चड्डा, he founded the Shift, formerly Mind House, in the November 2019. So I can say that Pankaj Chadha, he started doing his own work. He basically found some other option, और इन्होंने कोई नई कंपनी स्टार्ट की, and he left Zomato. ठीक है. So this is a basic information about the founders, and there is one more person. He is a Gaurav Gupta. And earlier, why you all are turn off your camera? Camera turn on कीजिए सारे बच्चे. Everyone, कैमरा टर्न ऑन करो. जब देखो कैमरा टर्न ऑन. अगर अगली बार मैं बता दूं, दिस इज द इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, अगली बार अगर आपने कैमरा ऑफ किया, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगी बिना दिए हुए वार्निंग. बिना वार्निंग दिए हुए आई एम गोइंग टू बस बाहर करना है आपको फिर क्लास से. कोई भी बच्चे को क्लास में है तो क्लास में दिखने चाहिए मुझे. आप लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, कुछ नहीं पता है. Okay, so Gaurav Gupta, he was initially joined as a global head of the advertising sales of Zomato. So he is not basically their colleague, or we can say that their classmate, but he was earlier started, he worked in Zomato and he joined as a global head of the advertising and sale. Later on, because of the promotion, he basically promoted to the co-founder position. Because of his work, Gaurav Gupta अपने काम की वजह से उनको बाद में प्रमोशन के दौरान, मतलब प्रमोशन से उनको को-फाउंडर का पोजीशन दे दिया गया. ठीक है. सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So who is the founder of Zomato? So earlier it was Pankaj Chadha and Dipinder Goyal, but Gaurav Gupta, he joined as a global head of advertising in Zomato, but because of his work he got promoted and he is now co-founder of Zomato. So let me show you the Zomato timeline, that how this story started. So in 2008 से 2010 तक ये एक फूड ईबे था, मतलब फूडी बे इसका नाम था. It was not named as Zomato, but its name was the Foodie Bay. ठीक है. एंड बाद में एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसको रीब्रांड कर दिया गया. इन्वेस्टमेंट के बाद इसको रीब्रांड कर दिया गया, जोमैटो इसका नाम रख दिया गया. 2012 से 14 में इट गोज टू इंटरनेशनल विथ यूएई लॉन्च, मतलब ये इंटरनेशनल मार्केट तक में गया. ठीक है. अरब इमिरेट्स जो आपका मिडिल ईस्ट जो आता है, वहां पर भी इन्होंने लॉन्च किया इसको. एंड हियर दे बेसिकली एक्वायर्स द मेन्यू मेनिया, लंच टाइम्स एंड Ovid, so many things. So in 2012 to 14, basically they reached to the
international market as well. In 2015 to 17, they launches the food delivery and introduced the membership program Zomato Gold. और 2015 से 17 तक में इन्होंने Zomato Gold नाम से कैंपेन चलाया, जहां पर आप इनके गोल्ड मेंबर बनते तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा उससे, ठीक है. When you are become the gold member, you will get the discount over that. So and उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें एक्वायर किया. Sorry, the first thing they acquires, that is Urban Spoon, ठीक है, Nextable, etc. So their acquisition was also done in 2015 to 17. In 2018, they launches the Hyper Pure and Food at Work and acquires the फूड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, टेक ईगल. सो इन्होंने 2018 में फूड एट वर्क नाम से कैंपेन चलाया और यहाँ पर भी इन्होंने एक्विजिशन किया किसका, आपका द नेम इज नॉट विजिबल टू मी एज सच, लेकिन द नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और टेक ईगल को इन्होंने बेसिकली क्या किया, एक्वायर किया. 2019 में दे लॉन्चेस Zomaland and they basically introduce the videos on its platform. So you are able to see the videos on the Zomato. You are able to, जैसे आप उसके ऐप को ओपन करोगे, you will see so many videos are basically showing in that app. So they introducing the video on its platform, ठीक है, and they are even doing the direct marketing. They are sending the emails to the registered email ID who is using the Zomato. एंड प्रेजेंट में अगर इनकी बात की जाए, मतलब अभी तो खैर अभी तो और भी ज्यादा सिचुएशन अच्छा है इनका, इन्होंने उबर ईट्स को एक्वायर किया, ठीक है, एंड दे आर बेसिकली इंट्रोड्यूस द कॉन्टैक्ट लेस डाइनिंग एंड दे बेसिकली ऑल्सो टेक द इनिशिएटिव ड्यूरिंग द कोविड पीरियड कि जो भी पर्सन आपको डिलीवर करेगा वो उसका आपको टेम्परेचर भी विजिबल होगा उस ऐप पे. सो दिस थिंग इज ऑल्सो बेसिकली इंट्रोड्यूस इन Zomato. So I guess this information is enough. How was this story? I told you that earlier the Zomato was known as Foodie Bay, and then Zomato was launched. If we'll talk about the mission and vision, the Zomato states that their mission is to ensure nobody has a bad meal. मतलब Zomato यही कहता है कि किसी को भी खराब खाना ना मिले. It ensure nobody has a bad meal. ठीक है, टैगलाइन वगैरह वही है, never have a bad meal. ठीक है, इसका स्टार्टअप चैलेंजेस था. देयर आर सो मेनी. इन 2015 सम सिचुएशन हैपेंड इन Zomato और 300 से भी ज्यादा को एम्प्लॉइज को इन्हें हटाना पड़ा बिकॉज ऑफ द लॉसेस. ठीक है, if we'll talk about the competitors, Swiggy is the major competitor of Zomato because that is in the rank 2 or 1 always. Zomato and the Swiggy are the competitors. There are some others competitor as well, but Swiggy is the major competitor. Okay, acquisition I already told you. The Grofers का भी इन्होंने 9.3% का stakes ले लिया है. ठीक है. Okay, so I guess this information is enough for all of you about Zomato. How's the story started? Clear है सबको? My next question. Anyone have any question about this? किसी को भी कुछ पूछना है? No, ma'am. Okay. See you all in the next class. About it in the next class. Okay. Anyone have any doubt in the project planning? Okay. See you all in the next class. I'm asking something. Anyone have any doubt in project planning? Okay. Okay. See you all in the next